Start. السلام علیکم ڈیئر فرینڈ اینڈ ویور. آج ہمارے پاس ہے بہت ہی نہایت ذہین اور اچھا اسٹوڈنٹ جس کو اپنی فیوچر کی پڑی ہوئی ہے اور اس کا جو ہے اپنے آپ کو آگے جانے کی آ، تمنا ہے اس کو. تو اس کا نام ہے ارحم. ارحم ریلائنسنگ والا. جس طرح میں نے کہا نا کہ یہ مطلب ایک جونیئر اسٹوڈنٹ ہے اور یہ ابھی سے جو ہے یہ آگے کے لیے سوچ رہا ہے اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کام میں لگا ہوا ہے. تو یہ فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. یہ کامرس فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اسکل سیکھ رہا ہے. اور اسکل کون سی اسکل سیکھ رہا ہے؟ یہ وہ اسکل سیکھ رہا ہے جو آج کے دور کے لیے بہت ہی نہایت ہی ضروری ہے اور اس کا آنے والے دنوں میں اس کی نہایت ہی اہمیت ہے. تو میں بھی کسی نے اس کو گائیڈ کیا ہو کہ آپ نے یہ اسکل کرنی ہے یہ نہیں کرنی، تو یا مطلب اس کی اپنی یہ خواہش ہے، تو یہ تو آگے جان کر اس سے انٹرویو کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگے گا. لیکن یہ جہاں تک مجھے پتہ ہے تو یہ نہایت ہی ذہین ہے اور نہایت ہی ڈیڈیکیٹڈ ہے اپنے کام کے لحاظ سے. تو آئیے ہم ان سے کچھ سوال جواب کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے اور آگے جانے کے لیے اس کی مطلب کیا سوچ ہے. تو السلام علیکم ارحم، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ بالکل ٹھیک. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اچھا ارحم، ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں ہوتی ہوئی بھی اسکل سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں ایڈمیشن لی ہے، تو یہ آپ کو کسی نے مشورہ دیا تھا یا اپنا آپ کا شوق ہے؟ کس چیز میں سیکھنے اے کی آئی کوشش میں کی؟ جی اسکل اے آئی اسکلز میں. مطلب اسکلز تو بہت ہوتے ہیں لیکن آج کل آپ اے آئی اسکل سیکھ رہے ہیں نا، تو اس حوالے سے بات کریں. دیکھیں آپ کو جیسے پتہ ہے اے آئی کتنا پاپولر ہے ابھی، کتنے اس سے بینیفٹس مل رہے ہیں لوگوں کو، کتنے لوگ اس سے اچھی ارننگ کر رہے ہیں. سو میں نے ہر جگہ دیکھا، پلیٹ فارم پہ الگ الگ کورسز دیکھے تو دیکھا اے آئی کا بھی ہمارا بہت فائدہ ہے، بہت پاپولر ہے اے آئی. دین میری مدر ہے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے مجھے بولا کہ یہ کورس کرو تم. اور ایک اور تھا گرافک ڈیزائننگ. تو ہم نے یہ دو کورس کو رکھ کے ایک ڈیسائیڈ کیا پہلے اے آئی کا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ابھی بہت پاپولر ہے. اس سے آگے ہمیں بہت فائدے ملیں گے، جس کا آگے بھی بہت فائدہ ہے. سو جب بھی میں اس اسکلس کو سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جو کہ میں خود کو بھی امپروو کروں آگے یہ سیکھ کر. گڈ. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ مجھے مطلب مختلف اسکلز میں یہ چوز کرنا پڑا، تو آیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یا کسی نے آپ کو بتایا کہ اے آئی کیا ہوتا ہے؟ سمپل ورڈ میں مجھے بتائیں تاکہ بالکل لوگوں کو بھی پتہ چلے. بالکل. اے آئی بیسیکلی اگر فل فارم بولے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہ بیسیکلی ایک روبوٹ کہہ لیں، روبوٹ ہوتا ہے جو کہ ہمیں سب کچھ بتا دیتا ہے. جو بھی ہم اس سے چیز پوچھیں فوراً ہمیں بتا دے گا. جو ہمارے کاموں میں اس نے 80% آسانیاں کر دی ہیں. تو سمپل ورڈ میں اگر ہم بولیں تو ساتھی بھی ہمارے کاموں میں آسانیاں بھی کر دیتا ہے. تو اس سے ایک بہت جدید ٹیکنالوجی ہے جس سے ہمیں بہت فائدہ ملتا ہے. اچھا، ایجوکیشن میں اے آئی کا بیسک رول کیا ہے یہ بتا سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایجوکیشن والا بندہ ہو تو وہ اس سے استفادہ کر سکے آپ کے جواب سے کہ ہمیں بھی اے آئی کرنی اگر چاہیے. جی بالکل. اگر فار ایگزامپل ایجوکیشن والا بندہ ہے اور اگر اسکلس بھی سیکھنا چاہ رہا ہے ساتھ ساتھ، تو اس کے لیے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اے آئی کرے، اے آئی سیکھے. کیونکہ اس کو وہ ایجوکیشن میں بھی کام آئے گا. کیونکہ فار ایگزامپل اگر اس کو کوئی کوشچنس وغیرہ چاہیے، کوئی کچھ اگر اس کو مشکلات ہو رہی ہے، کچھ چیز اس کو سالو کرنی ہے کہ اس کو ایجوکیشن میں یہ مسئلہ ہو رہا ہے، کوئی سبجیکٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے، اے آئی اس کو فوراً بتا دے گا. تو ایجوکیشن میں بھی اے آئی کا بہت اچھا رول ہے اگر آپ دیکھیں تو. اچھا، تو کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا اے آئی کی اسٹوڈنٹ کی لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتے ہیں؟ کیا اے آئی اسٹوڈنٹ کی لرننگ کو
لرننگ پروسیس کو امپروو کر سکتی ہے؟ بالکل کر سکتی ہے. اے آئی جو ہے آپ کی ارننگ، بیسیکلی ارننگ کیا ہے کتنی امپورٹنٹ ہے آج کل کے لوگوں کے لیے، اس کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں ہے. اس کو اس چیز کو امپروو کرتی ہے تو ایجوکیشن کو کیسے امپروو نہیں کرے گی. اگر فار ایگزامپل ہم اسکولس میں جاتے ہیں تو لیبس میں ہمارے پاس کمپیوٹر ہیں، فار ایگزامپل کسی کے اسکول میں ٹیبس ہیں، تو آپ وہاں پہ فار ایگزامپل اگر کوئی ہم چیز بولیں نا، کہ اگر ٹیچر سے بھی کچھ بولیں کہ ہم میم مس ٹیچر ہم یہ چیز کہاں دیکھیں ہیں، ہم کیسے اس کو سالو کریں، تو ٹیچر بھی بولتی ہے چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں. یہاں ہماری کوئی ٹیوشن والی باجی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو. تو مطلب اچھا، آپ یہ رول دیکھ لیں اس چیز کا کہ چیٹ جی پی ٹی کتنا، اے آئی کتنا پاپولر ہے. تو اگر یہ آپ نے جو بات کی نا کہ مطلب جب ہم ٹیچر سے پوچھتے ہیں فلاں سوال کا یا فلاں چیز کے متعلق، تو وہ کہتے کہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لے، اے آئی سے پوچھ لے. بالکل تو ایسے ہے. یہ وہ بات نہیں ہوئی جب بندہ کسی ہاسپٹل میں جاتا ہے اور وہاں پر اس کی جو ٹریٹمنٹ نہیں ہو پاتی، وہاں پر اس کی علاج میسر نہیں ہوتی اس ہاسپٹل میں، نہیں دیکھیں تو وہ اس کو لکھ دیتے ہیں کہ ریفر ٹو فلاں ہاسپٹل. تو جی یہ لیکن وہ بات نہیں ہے کہ مطلب کہ وہ آپ کو کہتے کہ ریفر ٹو فلاں ہاسپٹل. تو بالکل ایسے اس کے ہے یہ حوالے بات. سے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک منٹ کہ اگر یہ ہے تو پھر اے آئی جو ہے وہ ٹیچر کی مدد کیسی کرتی ہے؟ تو اس میں اس کی جو پرابلم کا سالنگ ہے نا ٹیچر کے، وہ ہمیں مل جائے گی. دیکھیں وہ بات صحیح ہے، میں ٹیچرس کو غلط نہیں بول رہا. وہ اچھا سے اچھا ہمیں پڑھاتے بھی ہیں، سمجھاتے بھی ہیں. میں اس چیز پہ بول رہا ہوں انہوں نے اپنا کلاس ختم کر لی، انہوں نے اپنا پورا پیریڈ ڈن کر لیا. اب ہم ان سے جا کے ایکسٹرا پوچھنا ہے کہ میم ہمارا یہ ہوم ورک ہے، اگر ہمیں یہ مشکل ہو تو ہم کس سے ہیلپ لیں، کس سے مدد لیں. تو فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ آپ کے پاس آپشن ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر وہ کلاس کے ٹائم پہ بھی بول رہے ہیں سمجھ نہیں آیا چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لو گھر ہی آ گئے. یہ نہیں ہے، ان اچھا کے کلاس ختم ہونے کے بعد فار ایگزامپل ہوم ورک کی بات کر رہا ہوں. اچھا، تو جو نیکسٹ میرا کوشچن ہے وہ تو پھر وہ یہ ہے کہ اے آئی ٹیچر کی مدد کیسے کرتی ہے، یہ بتائیں. اے آئی دیکھیں ٹیچر تو ماشاء اللہ بہت قابل ہوتے ہیں، ان کو تو ماشاء اللہ انہوں نے اچھی ڈگریز بھی لی ہوئی ہوتی ہیں، پڑھا ہوا بھی ہوتا ہے، دین وہ اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل ان کو تو ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ماشاء اللہ سے بہت اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، دوسروں کو بچوں اسٹوڈنٹس کو اچھی اچھی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اگر ان کو کبھی ضرورت پڑتی ہے کسی چیز میں پھنسے ہو تو وہ ہیلپ کر دیتی ہے. اے آئی ان کو بھی ہیلپ کر سکتی ہے. گڈ. اچھا، تو کیا ایک اے آئی اسٹوڈنٹ کے لیے پرسنل لرننگ پاسبل بنتی ہے کہ نہیں؟ مطلب دیکھیں خود سے اگر وہ پڑھے، ٹیچر کی ضرورت اس کو نہ ہو، تو بالکل پڑھ اے آئی سکتے ہیں. وہ پڑھ سکتا ہے؟ بالکل اگر اس کا فوکس ہوگا نا اسٹڈیز پہ، جس کا فوکس ہو وہ بغیر ٹیچر کے بھی پڑھ سکتا ہے اے آئی کے تھرو. لیکن اگر اس کا مائنڈ ہو پڑھنے کا، اگر اس کا فوکس ہو تو پڑھ سکتا ہے، ورنہ اس کو ٹیچر کی ضرورت لازمی پڑے گی. اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت پڑے گی جو مجھے سامنے سے فزیکل اس کو سمجھائے، جو کہ پڑھنے والا نہ ہے. جیسے اگر کوئی پڑھنے والا اسٹوڈنٹ ہے جس کا ہمیشہ سے ایک گریڈ بن رہا ہے، تو وغیرہ وہ گھر بیٹھ کے بھی اگر اس کو کچھ مشکل ہو رہی ہے وہ اے آئی کے تھرو پوچھ کے سالو کر سکتا ہے. اچھا، کیا اے آئی ہوم ورک یا اسائنمنٹ وغیرہ میں ہیلپ کر سکتی ہے؟ بالکل کرتا ہے، لازمی کرتا ہے. اسائنمنٹس وغیرہ میں ہر چیز میں ہیلپ کرتا ہے وہ. اگر دیکھیں ہم پوسٹ ہی بنا رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی کے، کتنا ہیلپ کر رہے ہیں، تو کہہ لیں وہ ایک اسائنمنٹ ہی ہے ہمارا. تو آیا آج کے دور میں اے آئی سے اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ اسٹڈی میں ختم ہو رہا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے؟ آگے بڑھ رہا ہے کیونکہ اب آسانی ہو رہی ہے نا اے آئی کے تھرو اسٹڈیز وغیرہ میں. جو ہم کوشچن گھنٹوں ڈھونڈتے ہیں وہ ہمیں وہ 2 منٹ میں دے دیتا ہے. آنسرس جو ہیں وہ ہمیں 2 منٹ میں دے دیتے، تو آسانی ہی ہے. اور تو یہ آگے بہت اچھا رہے گا. تو اس سے کیا ہم احس کر سکتے کہ کیا اے آئی سے چیٹنگ ختم ہو رہی ہے یا بڑھ رہی ہے؟ اے آئی سے چیٹنگ کہہ لیں کہ بڑھ بھی رہی ہے، کیونکہ ہر کوئی جا رہا ہے اے آئی سے پوچھ لیتا ہے، ہر کوئی جا رہا ہے اے آئی سے پوچھ لیتا ہے. اب سب کی توجہ جو ہے نا خود پہ نہیں ہے کہ ہم خود کریں. ہم خود تھوڑا مائنڈ لگائیں، آدھا گھنٹے سوچیں، 15 منٹ سوچیں،
डायरेक्ट गए, टॉपिक उठाया, देन चैट जीपीटी को दे दिया। तो कहने चीटिंग भी क्या तो क्या जो आपने बताई ना, जो जवाब आपने बताया है अभी, जिसकी मुतालिक आप कह रहे हैं कि मतलब इससे चीटिंग बढ़ रही है, लोगों को आसानी पैदा हो रही है, तो आसानी से बस जो है चैट जीपीटी से जो है वो अपना आंसर निकाल लेता है ना। जी, तो लेकिन क्या देखिए ना, रियल रियल एआई वर्ल्ड में ऐसा नहीं है? अगर मैं कहूँ कि ये ऐसा नहीं है, तो बिल्कुल क्या ऐसा ये नहीं है। गलत उस हिसाब से कह रहा हूँ, देखें जो अब पढ़ने वाला बच्चा भी नहीं है ना, अब उसको है? थोड़ा अगर स्टडीज़ की तरफ फ़ोकस लाना है, तो खुद को उसको सोचना पड़ेगा 15-20 मिनट, आधा घंटे, कि मैं इसका आंसर कैसे निकालूँ? जी बिल्कुल, क्योंकि एआई एआई जो है मेरे ख्याल में, एआई आपको उस वक्त जो है सही रिजल्ट और आपको जो दरकार हो देती है, जब आप जी, उसको सही प्रॉम्प्ट दें। तो ऐसे ही है। सही प्रॉम्प्ट कमांड देने के बाद वो आपको सही रिजल्ट देगी। तो किसी को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता हो, अपना वही मैं कहना जो चाह रहा क्वेश्चन है उसको समझाना नहीं आता हो एआई को, तो हूँ। ऐसे ही एआई जो है तो आगे से जवाब नहीं दे सकती ना, तो इसके ऐसे लिए ही है। ज़रूरी वैसे है मैं कि मतलब। उनकी बात कर रहा हूँ जो बिल्कुल थोड़े पढ़ने में कम हो, उनका जी, कह जी, रहा हूँ, आपकी बात क्योंकि सही वो है। डायरेक्ट डायरेक्ट चैट जीपीटी के पास जाएँगे, आपको भी पता है। हुँ, आप एज़ अ टीचर आप भी हैं, आपको पता होगा कि स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जो नहीं पढ़ने वाले होते हैं, वो तो डायरेक्ट बहाना बिल्कुल। ढूँढता है हर चीज़ का। ऐसे ही बिल्कुल। है। आजकल के स्टूडेंट्स हैं जो है वो सोशल मीडिया और गेम्स ने मतलब घेरी हुई है अपने शहर में, तो उससे हुँ, निकलते नहीं है। असल बिल्कुल बात ऐसे यही ही है, एआई और तालीम ये सब भी मतलब ज़रूरी चीज़ें हैं, लेकिन जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं वो गैर ज़रूरी सोशल मीडिया है। एक सोशल मीडिया ये भी है, जब जो हम अब बात कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, कोई दे रहा है, ठीक है ना? और इसको लाइव कर रहा है, तो एक सोशल मीडिया ये भी है। एक सोशल मीडिया ये भी है कि हम ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। तो हुँ, हुँ। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, लेकिन ज़्यादातर मार्केट में जो इधर-उधर लोग हैं, तो वो इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे ही है, इस वजह बिल्कुल से ऐसे मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि क्या एआई फ्यूचर में टीचर को रिप्लेस कर सकती है? ही। नहीं, देखें, रिप्लेस तो नहीं कर सकता। उस्ताद को कोई टीचर्स को बिल्कुल कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि टीचर्स गाइड करते हैं, अच्छी तालीम दे सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल मोंटेसरी हो गया, केजी 1 हो गया, 2-3 क्लास हो गए, उनको तो एआई वगैरह नहीं पता ना, छोटे हैं अभी वो तो उनको मोबाइल यूज़ करना नहीं आएगा, उनको तो कंप्यूटर चलाने नहीं आएँगे। उनको तो टीचर की ज़रूरत होगी ना कि कैसे हम एबीसीडी पढ़ें, कैसे हम क्या करें, वो भी डायरेक्ट कंप्यूटर लैपटॉप पे तो नहीं बैठ जाएँगे। और कहीं न कहीं बड़े स्टूडेंट्स को, जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हो गए, उनको भी कहीं न कहीं टीचर की ज़रूरत पड़ेगी कि हमें ऐसे सामने से कोई गाइड करे। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि क्या एआई से एआई के इस्तेमाल से एग्ज़ाम में कुछ लेने में कुछ बेहतरी आई हुई है कि नहीं? जैसे स्टडीज़ में पढ़ने के हिसाब से एग्ज़ाम में। जी, बिल्कुल, मतलब जैसे एग्ज़ाम होते हैं ना, तो एग्ज़ाम में एआई का इस्तेमाल हो रहा है और उसमें कुछ बेहतरी आई है कि नहीं? पुराने जी, सिस्टम एग्ज़ाम सिस्टम में और जो नया सिस्टम लॉन्च हुआ है ना एआई के थ्रू। बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ायदा है उस चीज़ का, एग्ज़ाम में हुआ है सिस्टम चेंज एआई के थ्रू, और ऐसे स्टूडेंट्स को भी बहुत फ़ायदा मिला है जो कि ऑनलाइन हो चुका है अब सारा सिस्टम, और ऑनलाइन जो हुआ है तकरीबन उसमें एआई के थ्रू आधा काम हुआ है। अच्छा, तो फिर तो इससे एजुकेशन सस्ती होगी या महँगी होगी एआई की से? देखिए, कई जगह ना जहाँ एआई की वैल्यू होगी, जहाँ उसको वैल्यूएबल समझा जाएगा, जहाँ उसकी कदर होगी, वहाँ उसकी प्राइस महँगी भी होंगी और कहीं कम भी मिलेंगी। हर जगह अपने एरिया के हिसाब से पैसे होंगे। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या हर स्टूडेंट को एआई टूल्स यूज़ करना चाहिए कि नहीं? चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्योंकि एआई का भी बहुत फ़ायदा है आगे जाके भी इस चीज़ का। ये नहीं कि अगर कोई दूसरी चीज़ भी आ गई, किसी और चीज़ का भी ट्रेंड चल जाएगा ना,
AI कहीं ना कहीं आपको फिर भी फायदा देगा। गुड। पाकिस्तान में एआई एजुकेशन का फ्यूचर कैसा है, आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में बेसिकली जो ज़्यादा वो है ना फ़ायदा, एडवांटेजेस स्किल्स का ही है। एजुकेशन भी है अपनी जगह, लेकिन जो यहाँ मैटर करती है ना पाकिस्तान में, वो करती हैं स्किल्स मैटर। सो एआई स्किल्स में बहुत पॉपुलर है, तो ये बहुत अच्छा है पाकिस्तान में, जो कि आइंदा आगे जाके फ़ायदा देगी। अच्छा, हमारी गुफ्तगू में एक बात हुई ना जिसका एक क्वेश्चन बनता है, ये क्या एआई क्रिएटिव थिंकिंग को इफेक्ट करती है कि नहीं? किस चीज़ को? क्रिएटिव इफेक्ट को, क्रिएटिविटी, अगर एक बंदे में क्रिएटिविटी है, कुछ बनाने की सलाहियत है, वो बना टैलेंट सकता जैसे। है, एआई क्या उसको इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? क्योंकि उसको रेडीमेड मिल रहा है ना, तो वो करेगा, कहेगा कि बस इतना लंबा चौड़ा टाइम और गुजार के लेकिन बस अगर सीधा किसी साधा में यहाँ से देखिए, अगर किसी में टैलेंट, किसी में क्रिएटिविटी है ना, वो चाहेगा उसको पूरा करना। और अगर वो उसी से एआई से जाके हेल्प लेगा कि मैं इस चीज़ को कैसे पूरा करूं, और एआई उसकी हेल्प ही करता है कि तुम अपनी क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाओ। ना कि ये कि तुम छोड़ो ये बेकार टैलेंट है, उसको कहे क्रिएटिविटी छोड़ो, इस तरफ फोकस दो, स्टडीज़ की तरफ फोकस दो। एआई भी उसको हेल्प देगा कि अपने क्रिएटिविटी, अपने टैलेंट को आगे कैसे बढ़ाओ। गुड। तो अच्छा, इफेक्टिव नहीं है, उसको हेल्प ही करेगा। आप भी स्टूडेंट हैं तो आपका वास्ता स्टूडेंट के साथ है, तो क्या आप बता सकते हैं कि एआई के इस्तेमाल से स्टूडेंट का डिफेंड जो है वो एआई की यूज़ पर ज़्यादा है या नहीं, कम है? देखें, जहाँ तक मेरा स्कूल था और जहाँ तक अभी मेरी एरियाज़ में, और कह लें जो कि थोड़े नॉर्मल स्कूल्स हैं, वहाँ एआई का कम इस्तेमाल है। और जो मोस्ट पॉपुलर हाई डिमांड पे स्कूल्स हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स हो गए, वहाँ पे एआई का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे स्कूल्स में तो ना होने के बराबर था, अच्छा। साफ कहूँ तो। अब भी जो आ रहा है ना एआई का, अगर कहीं वर्डिंग आ रही है तो बुक्स में आ रही है, अदरवाइज नहीं आ रही। अच्छा, मतलब मैं तो सोच रहा था कि वहाँ पर एआई का जो है बहुत ज़्यादा नहीं, रंगारंग होगा। नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी अ, नहीं है। कुछ स्कूल्स हैं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे मैंने अपने अच्छा। स्कूल में पढ़ा तो उधर नहीं है। वो अगर बुक में आ गया तो आ गया, अदरवाइज नहीं आता। अच्छा, क्या एआई का टूल्स यूज़ करते वक्त रिस्क हो सकती है कि मतलब एक बंदा रिस्क लेके मैं ये काम करूँ, ये हो ना जाए, इसकी मुझे फर्दर जो है फ्यूचर में इसकी एबिलिटी ना हो, मुख्तलिफ खदशात। देखें, अगर बंदा नेगेटिव काम सोच के नेगेटिव काम करेगा, तो नेगेटिव फायदा होगा उसका। अब एक चीज़ एआई टूल है, आप उसका सही इस्तेमाल करो, उससे सही इन्फॉर्मेशन लो, तो वो आगे आपको सही फायदा देगी। ना कि एआई नेगेटिव क्वेश्चंस, नेगेटिव चीज़ों के लिए बना है। अगर आप उसको नेगेटिव चीज़ें बोलोगे, नेगेटिव चीज़ें दोगे, तो वो नेगेटिव ही करेगा, ना कि वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन आपको बताएगा ये चीज़ आप गलत कर रहे हो, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, और एआई साफ मना कर देता है, ये मेरे खिलाफ है, मैं नहीं कर सकता। गुड। अच्छा, पेरेंट्स को एआई के बारे में क्या समझाना चाहिए ताकि वो समझ सके, ताकि बच्चों को ले आए ना एआई में? तो ऐसे वालिदैन हैं कि उसको समझ नहीं है, तो उसको कैसे समझाए? देखें, सबसे पहली चीज़ पेरेंट्स को समझना चाहिए कि एआई टूल्स अभी बहुत पॉपुलर चल रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाएं। फॉर एग्जांपल, अगर वो 2-3 कोर्सेज निकाले हैं उन्होंने, तो टॉप पे उन्होंने उन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग या एआई वाला रखना चाहिए कोर्स। क्योंकि आगे इस चीज़ का बहुत एडवांटेजेस है, और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि नेगेटिव यूज़ ना करें किसी भी प्लेटफॉर्म को, पॉजिटिव वे में ही लेके जाएं, फिर आगे उसको पॉजिटिव ही आपका एडवांटेज मिलेगा। अगर नेगेटिव कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो नेगेटिव ही मिलेगा कभी ना कभी। फॉर एग्जांपल, थोड़ा वक्त अच्छा निकल गया, आगे जाके वो नेगेटिव ही आपको डिसएडवांटेज देगी।
अच्छा, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या एआई से कम्युनिकेशन स्किल पर कोई इफेक्ट पड़ती है? नहीं, इफ़ेक्ट नहीं पड़ती। आपको उसी में एडवांटेजेस मिल सकते हैं और फ़ायदा मिल सकता है एआई के थ्रू। कम्युनिकेशन स्किल्स कम नहीं होंगी और बढ़ेंगी मज़ीद। अच्छा, तो एआई का बेस्ट यूज स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं? आप क्या? स्टूडेंट को कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइडलाइंस दे क्या? सकते हैं भाई? एआई का बेस्ट यूज स्टूडेंट कैसे कर सकते हैं? कैसे स्टूडेंट एआई को बेस्ट यूज करें? देखिए, बेस्ट यूज़ ऐसे कर सकते हैं, जैसे हम पोस्ट्स वगैरह बना रहे हैं, डिस्क्रिप्शंस बना रहे हैं, वो हम अच्छे अच्छे बनाएं, देन पोस्ट करें अपने प्लेटफॉर्म्स पे, दूसरों को बताएं एआई क्या चीज़ है, एआई का कैसे इस्तेमाल करें, उसको हम कैसे अपनी मदद में ले सकते हैं, हम उससे क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। जैसे हमें कोई मुश्किल हो रही है, हम किसी चीज़ में फंस गए हैं, जैसे हमें कोई कुकिंग करनी है, कोई रेसिपी ले सकते हैं कि हमें खाने की रेसिपी, हमने आज ये इस एआई को बोला, उसने हमें डिस्क्रिप्शन दी और उससे हमने इतना अच्छा खाना बनाया। तो हम जैसे अगर हम एआई के थ्रू कुछ कर रहे हैं ना, हम दूसरे लोगों अपनी ऑडियंस को भी बताएं, ताकि उनको भी पता चले एआई कैसे लोग यूज़ कर रहे हैं। गुड। अच्छा, कभी आपने इमेजिन किया हुआ है या आपने सोचा है कि फ्यूचर में क्लासरूम कैसी होंगी एआई का इस्तेमाल करते हुए? इन फ्यूचर जो मुझे लगता है, बोर्ड की जगह एलईडी लगी होगी और गुड। उस पे वेरी वेरी एक्सपेंसिव तो है। एलईडी और बोर्ड में बहुत ज़्यादा प्राइस में डिफरेंस है, और हम सोच दें। प्राइस में डिफरेंस है, लेकिन आगे बहुत जदीद दौर आ रहा है। सो जो हम्म। स्कूल्स की वो होगी ना, एजुकेशन पढ़ाई, वो भी हाई स्टैंडर्ड की होगी, जहाँ तक मुझे लगता है, गुड। क्योंकि है तो अभी भी अच्छी काफ़ी तो और आपके बड़ी ख्याल रही में वो है। पुराना पुराना ज़माना गया, कि वो चाक या मार्कर से जो है एक डायग्राम बनाना, फिर उसको एरो देना और उसको आइडेंटिफाई करना, ये काम गया? जी, चौक वाले तो कब का जा चुका है, अपना वो बोर्ड चलना है, हाँ। कह लें एलईडी कह लें, उस पे भी वो मार्कर से लिखते हैं और हाथ से ही मिटा देते हैं। हाँ, तो आपके ख्याल में ये मतलब ये सब खत्म हो रहे हैं जी, ये धीरे खत्म हो धीरे? रहा है। मुझे लगता है हाई स्टैंडर्ड की और एजुकेशन होगी आगे। तो क्या एआई के आने से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है या खत्म हो रही है? क्योंकि हर किस चीज़? बंदा जो है, जो एआई के आने से जॉब अपॉर्चुनिटी जो होती है ना, मार्केट में जॉब अवेल करना, जी, तो जॉब। लोग कह रहे हैं कि इससे जॉब खत्म हो जाएंगी, तो क्या इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? नहीं, जॉब्स खत्म तो नहीं होंगी, ये है, लेकिन हर एआई के थ्रू जो हर स्टूडेंट कह लें या जो भी सीख रहा है अच्छे से अच्छा टीचर, वो अपना एक टीचर बन रहा है, एज अ टीचर दूसरों को पढ़ा रहा है, अपना बिजनेस कर रहा है ऐसे ही थ्रू। और ऐसे ही और भी लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं एआई के थ्रू, जैसे कोई अपनी शॉपिफाई बना लिया स्टोर, कोई कुछ बना लिया, तो ऐसे अपने बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जॉब्स खत्म नहीं होंगे। जॉब्स भी आएंगी, एआई की वाली आएंगी, जो कि आपको एआई के थ्रू ही करनी होगी। अच्छा, एक स्टूडेंट को एआई एआई सीखने के लिए क्या ज़रूरी है? उसके लिए कुछ खास स्कूल्स है, कॉलेज है, कोई डिग्री है, सर्टिफिकेट है, कोई कोर्स कंटेंट है? कहाँ से शुरू करना होगा उसको, कहाँ तक उसको ले जाना होगा? आप कोई बहुत इजी वे, उसको गाइडलाइन दे सकते हैं बहुत कि इजी कहाँ वे से जैसे स्टार्ट और कहाँ तक जाए फिर वो आगे आगे? हम रिहानिया इंस्टीट्यूट जैसे हमने ज्वाइन किया हुआ है टीचर्स ट्रेनिंग का। अब हमारा लेवल 1 है, कितना ईज़ी हम ऑनलाइन सीख रहे हैं और अच्छे से अच्छा कर रहे हैं। देन हमारे आगे लेवल 2, लेवल 3 आएगा, तो देन हम नीचे से स्टार्ट हुए ना, अगर हम हल्के ईज़ी वे से स्टार्ट हुए हैं, हम ये भी अच्छा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाएँगे, तो वो भी हम अच्छा करेंगे। थोड़ा हार्ड होगा लेकिन हम करेंगे। तो ईज़ी है, मुश्किल तो नहीं कहूँगा मैं। हम्म। अगर दूसरे भी कोई करना चाहे, बस फ़ोकस रखें अपना, देन सब अचीव होगा। तो आपके ख्याल में एआई का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है आजकल? डिसएडवांटेज मैं यही कहूँगा कि जो जो डिसएडवांटेज एआई का नहीं है, लोगों का है, पीपल्स का है, जो उसका गलत यूज़ कर रहा है। वो वो तो हमें फ़ायदा ही देने की कर रही है। अगर हम उससे नेगेटिव कोई क्वेश्चन भी बोले ना, सबसे पहले वो कहेगा मैं नहीं बताऊँगा, ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन आप उससे बार-बार वो करोगे, फ़ोर्स करोगे उससे, कुछ ना कुछ तो वो बताएगा ही ना कि ऐसा करो, ऐसा करो।
गुड, बिल्कुल। अगर हम उससे अच्छी चीज़ पूछेंगे वो अच्छी चीज़ बताएगा, देन आप अच्छी पॉजिटिव वे में उसको यूज़ करो। अच्छा, तो ये जो रेहान एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसमें आपने दाखिला लिया हुआ है, तो ये किसी ने आपको बताया था या आज आपने फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पर इसकी एडवर्टाइजमेंट देखी हुई थी? ये तो मैं बहुत टाइम से देख रहा था, और मेरे से ज़्यादा मेरी मदर देख रही थी, जिन्होंने मुझे ये ज्वाइन करवाया स्पेशली। देन मेरा भी इंटरेस्ट बना, मैंने ज्वाइन करा, क्योंकि बेसिकली मैंने देखा है एडवांटेजेस बहुत हैं इस चीज़ के। सो मुझे ज्वाइन करना चाहिए, स्किल्स लेनी चाहिए, तो ये। तो मार्केट में स्कैम भी बहुत है ना, आप जी। एडमिशन करवा देते हैं, तो करा देते हैं, लेकिन बाद में आपको वो रिस्पांस नहीं मिलती। तो नहीं, ऐसा नहीं आपका है। क्या आपका फीडबैक क्या है कि आप मुतमईन हैं इनकी टीचिंग से, इनकी वर्क से? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, मुझे रिस्पॉन्स भी फ़ौरन मिला और अच्छे से अच्छा मिला, और उन्होंने भी मेरे साथ बहुत वो करा कोऑपरेट, और अभी तक मेरा भी बेस्ट रिव्यू है। जैसे मुझे गाइडेंस मिली है, जैसे मुझे पढ़ा रहे हैं जो हमारे टीचर्स हैं, मिस महा, मिस महक, और भी मिस साइमा, मिस नरीन। सो हमें अच्छे से अच्छा पढ़ा रही हैं, अच्छे से अच्छा सिखा रही हैं, और जो कि हमें समझ भी आ रहा है। ये नहीं कि समझ नहीं आ रहा, कैसा गाइडेंस मिली है, कैसा बस लेक्चर देती हैं, अच्छे से अच्छा गाइड कर रही हैं। सो मैं अप्रिशिएट करूँगा रिहानिया इंस्टीट्यूट को, कि वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से अच्छे गाइड कर रहे हैं, अर्निंग एंड आगे अर्निंग सिखा रहे हैं कि 12 साल का बच्चा भी कैसा कमा सकता है। गुड, गुड। अच्छा, थैंक यू अरहम, आपकी टाइम का, आपने हमें टाइम दिया और बहुत मुफीद मालूमात एआई का एजुकेशन के ऊपर इम्पेक्ट का आपने बता दिया। मैं भी बहुत से लोगों को, स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा हो, और बिल्कुल। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट न्यू सेशन में दोबारा एक न्यू टॉपिक के पर आएंगे और इंशाल्लाह अपनी व्यूअर को उसके बारे में बताएंगे। तो इंशाल्लाह। थैंक यू व्यूअर, ये था रेहान अरहम फ्रीलांसिंग वाला, जिसने बहुत मुफीद बातें हमारे साथ शेयर की, और मुझे लगता है कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इन आपको मिला होगा। तो सी यू एंड वेट फॉर नेक्स्ट सेशन। थैंक थैंक यू यू सो मच। आलिफ। हाफिज़।